the lesson number 8 of your class 8 English, that is Queen of the Skies. In this story, we are going to read about the interview taken for the air pilot. She is the woman air pilot. So let's begin with this. So interviewer, why did you want to be a pilot when there were no women pilot? तो interviewer ने दुर्गा से पूछा कि तुम पायलट बनना क्यों चाहती थी जब कोई भी अब तक कोई वुमेन पायलट नहीं थी. Durga said, in my time, girls were just becoming teachers and doctors. मेरे टाइम में टीचर्स क्या बन रही थी, या तो डॉक्टर्स बन, गर्ल्स क्या बन रही थी, या तो डॉक्टर्स बन रही थी या टीचर्स बन रही थी. I thought I should be completely different, and I had read a poem as child about walking the skies, and that had fired my imagination about flying. तो क्या हुआ, जब मैंने सोचा कि मेरे को सबसे डिफरेंट बनना है, और बचपन में मैंने एक स्टोरी पोएम पढ़ी थी जिसका जैसे कि a child about walking the skies. बचपन में मैंने एक पोएम पढ़ी थी about walking the skies, and that had fired my imagination. उससे मेरी उम्मीदें और imagination बहुत ज्यादा हाई हो गई थी फ्लाइंग के लिए. My father was a liberal means उदार, educated man and always supported me. बहुत अच्छे आदमी थे, educated थे और हमेशा मुझे support करा था. He encouraged me by saying the women in my family had taught me that girls can do better than in man whatever they undertake. तो मेरी वो मुझे हमेशा encourage करते थे ये कह के कि मेरी फैमिली की वुमेन्स ने ये सिखाया है कि एक लड़की बहुत बेटर कर सकती है, एक अगर वो कुछ ठान ले तो मैन से भी ज्यादा बेटर कर सकती है. Then interview, when did you start flying? Interviewer ने बोला कि तुमने फ्लाई करना स्टार्ट कब करा था. I start flying in 1951. मैंने 1951 में फ्लाई करना स्टार्ट करा था. I became a pilot with great difficulty. मैं बहुत मुश्किलों से पायलट बनी थी. No one was willing to hire me because I was a woman. कोई भी मुझे हायर करने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि मैं एक वुमेन थी. They were scared to be piloted by a woman. और उनको डर लगता था कि वुमेन उन्हें पायलट करेगी. Whenever I went for flying test in Kolkata, they kept issuing medical certificates saying my eyesight was not okay. जब मैं फ्लाइंग टेस्ट के लिए गई थी कोलकाता, मैंने फर्स्ट टाइम करा था, कोशिश करी थी, मैं फ्लाइंग टेस्ट के लिए जाती थी तो मुझे क्या दे देते, सर्टिफिकेट दे देते कि मेरी आईज ठीक नहीं है. Finally, my instructor suggested that जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बताया that I try my luck in Delhi, और मैं अपना लक कहाँ ट्राई करूँ, दिल्ली में ट्राई करूँ. I went there, got a license and started flying in 1953. मैं वहाँ गई और मुझे लाइसेंस मिला और मैंने फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया कब, 1953 में. I approached Air Marshal Mukherjee and pestered him with endless requests that I be allowed to enter the Air Force. Till he wrote to the director of Air Survey to hire me as a survey pilot. तो क्या हुआ था, मैं कहाँ किसको अप्रोच करा, मैंने एयर मार्शल मुखर्जी को अप्रोच करा था और मैं पास्ट टेनिस अब बार पूछती रही उनसे कि एंडलेस रिक्वेस्ट करी कि मुझे अलाउड दैट आई बी अलाउड, मुझे अलाउ कर दो एयर फोर्स में. तब तक उन्होंने लेटर लिख दिया था डायरेक्टर के लिए कि मुझे सर्वे पायलट की तरह हायर कर लो. I was paid only 3,000. मुझे खाली 3,000 मिलते थे, while male pilots earned 22,000 और मेल पायलट्स को 22,000 रुपीस मिलते थे. I was asked to carry out flights for aerial mapping और मुझे एरियल मैपिंग के लिए फ्लाइट्स कैरी करना अलाउड था. I had to fly at high of 15,000 feet without oxygen and pressurization और मुझे 15,000 हाई तक फ्लाई करना पड़ता था जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, प्रेशराइजेशन नहीं था. It was quite risky, वो बहुत ज़्यादा रिस्की था. I was also very tedious at the photographer and made me fly over and over same area again and again until he got the coordinates right. It was very complicated work और मुझे हाई पे हाई फ्लाई करवाते थे जब तक उन्हें कोऑर्डिनेट्स नहीं मिले थे. So और it was very complicated work और ये बहुत ज़्यादा complicated work था. Interview, was flying rewarding in those days? क्या तुम्हें फ्लाई करने पे रिवॉर्ड्स मिलते थे उन दिनों में?
My salary was only rupees 356 when I first joined as a pilot. तो मैं पहली बार पायलट बनी थी, खाली मेरी सैलरी rupees 356 rupees थी. The first plane I ever flew was a Tiger Moth. जो फर्स्ट प्लेन था जो मैंने फ्लू करा था उसका नेम था टाइगर मॉथ. It was very small with the wings on the top and the bottom. बहुत ज्यादा छोटा था, उसके विंग्स कहाँ पे थे, टॉप पे थे और उसके नीचे थे बॉटम में. It was made of cloth and open on top, और वो क्लोथ से बना हुआ था, ऊपर से खुला हुआ था. My helmet and belt were the only safety. जो मेरी हेलमेट थी और बेल्ट थी बस वही सेफ्टी थे. I kept trying for a commercial airline job, but they never even bothered to reply to my application. मैं ट्राई करती रही किसके लिए, एयरलाइन जॉब्स के लिए, कमर्शियल एयरलाइन जॉब्स के लिए, बट वो कोई रिप्लाई नहीं करते थे मेरी एप्लीकेशंस पे. When I sent an application without prefixing miss in front of my name, they called me for the interview, but when they saw that I was a girl, they immediately rejected me. तो मैंने एक दिन क्या करा, मैंने अपने नेम के आगे से मिस हटा दिया, खाली अपने नेम के साथ भेज दिया. तो उन्होंने मुझे कॉल कर दी इमीडिएटली इंटरव्यू के लिए, बट जब उन्होंने देखा कि मैं एक लड़की हूँ तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया. इंटरव्यू, व्हेन डिड यू बिगिन फ्लाइंग एज अ कमर्शियल पायलट? तुमने कमर्शियल पायलट की तरह फ्लाई करना कब स्टार्ट करा? शी इज दुर्बा. In 1957, I joined Airways India as a कमर्शियल पायलट. 1957 में मैंने एयरवेज इंडिया को ज्वाइन करा कमर्शियल पायलट की तरह. I flew freight and passenger from Ambari to Kolkata and back. Indian Airlines refused to accept me initially. तो मैंने क्या फ्लू करा था, मैंने फ्रेट नहीं, जो गुड्स कैरियर होते हैं, और पैसेंजर फ्रॉम कहाँ से कैरी करे थे, अंबारा से कोलकाता तक, और एंड बैक इंडियन एयरलाइंस, और जो बैक इंडियन एयरलाइंस थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था मेरे को एक्सेप्ट करने के लिए इनिशियली. They preferred to hire men with 100 hours flying experience, even though I had already lost 6,000 hours. It was only in 1996 that I finally joined IA. तो क्या हुआ, उनको खाली 100 आवर्स का एक्सपीरियंस वाले मैन चाहिए थे, बट मैंने लॉन्च करा कि मैंने उनको बताया, रिटर्न में दिया कि मैंने 6,000 आवर्स को तक फ्लाई कर चुकी हूँ. फिर 1996 में I finally joined IA. मैंने इंडियन एयरवेज को फाइनली ज्वाइन कर लिया था. इंटरव्यूअर, was it difficult being the only woman pilot? क्या खाली वुमेन पायलट बनना डिफिकल्ट है? दुर्बा, the male pilot accepted me almost immediately. मेल पायलट ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था. In the air, I was just another pilot and they judged me on my performance. और उसमें खाली मैं एक ऐसी पायलट थी जिनको उन्होंने परफॉर्मेंस पे जज करा था. I never saw myself as extraordinary phenomenon. और मैंने अपने आप को कुछ अलग सा देखना पसंद नहीं करा कि मैं कुछ सबसे अलग extraordinary phenomena. I just wanted to do the job as best as I could, as it was my bread and butter. मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी थी अपनी जॉब में, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी थी, bread and my butter. I never felt one up on my colleagues. और मैं कभी मतलब अपने से नीचे किसी कलीग को नहीं मानती थी, मैं किसी कलीग से अपने आप को ऊपर नहीं मानती थी. IA also treated me fairly. Once IA ने मुझे अच्छे से ट्रीट करा था, I joined them, उनको ज्वाइन कर लिया. Initially, it was some passenger who were afraid to fly with me. एक ऐसा पैसेंजर था जो डर रहा था मेरे साथ फ्लाई करने से. Many VIPs used to mistake me for an air hostess. जो VIPs होते थे मुझे सोचते थे कि मैं एयर हॉस्टेस हूँ. I need to enjoy the shock on their faces when they learn the truth. और मुझे शॉक उनके फेस पे बहुत अच्छा लगता था जब उन्हें पता चलता था कि मैं पायलट हूँ. Interviewer, what routes were you flying and where the planes you flew? तुम कौन से रूट पर फ्लाई कर रही थी और कौन से प्लेन्स तुमने What were the planes you flew? और कौन से प्लेन्स तुमने फ्लू करे थे? दुर्वा, I flew all eastern routes. मैंने सारे ईस्टर्न रूट्स पर फ्लू करा था, as well as Chandigarh, Kashmir, Leh, Chennai, Colombo, Mer, Andaman, and of course to Bangladesh. मैंने ये सारे रूट्स फॉलो फ्लू करे थे. I flew a Fokker Friendship, a Chipmunk, a Decot, and an avion as Boeing and Airbus
300 मैंने ये सारे एयरक्राफ्ट से फ्लू करे थे, जैसे फोकर फ्रेंडशिप हो गया, चिपमंक हो गया, टेकोटा हो गया, एवियन हो गया, as well as Boeing and Airbus 300. I am mentioned in the Guinness Book of World Record as the first woman pilot to fly an A300. तो मैं मेंशन हूँ वहाँ पे वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में, क्योंकि मैं फर्स्ट वुमेन पायलट हूँ जिसने फ्लाई करा था A300. इंटरव्यू, व्हेन डिड यू अर्न योर कमांडर्स बैच? तुम्हें आपकी कमांडर्स की बैच कब मिले? फॉर गेटिंग एनी कमांड आई हैड टू गो थ्रू सो मेनी टेस्ट्स दैट आई ऑलमोस्ट गिव अप इन डिस्पेयर. कमांड करने के लिए मुझे बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते जो मैंने गिव अप कर दिया था डिस्पेयर, जल्दबाजी में. It was only 1977 that I became commander. और 1977 में मैं क्या बन गई थी? कमांडर बन गई थी. And as Captain Durba Banerjee, और कैसे बनी थी? Captain Durba Banerjee. I went to the US. मैं US गई थी as the Indian representative at the World Lady Pilot Association gathering. जो क्या था यूएस में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव था, मैं इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की तरह गई थी, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था वहाँ पे वर्ल्ड लेडी पायलट एसोसिएशन गैदरिंग में. इंटरव्यू, व्हाई आर सम ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल फ्लाइट्स? आपकी सबसे ज्यादा मेमोरेबल फ्लाइट्स कौन सी हैं? दुर्बा, my first solo flight when my sister and I flew alone to Delhi to attend the international fair and my heart was bursting with joy. मेरी फर्स्ट फ्लाइट जो मैं अपनी सिस्टर के साथ अकेली फ्लू करी थी, कहाँ पे? दिल्ली के लिए आई थी इंटरनेशनल फेयर में, और मेरे हाथ जो था बहुत बर्स्ट कर रहा था जॉय से, मुझे बहुत खुशी हो रही थी. I felt I had finally achieved my dream. और मुझे लगा मैंने अपने ड्रीम्स अचीव कर लिए हैं. I also remember flying DC-3s in Arunachal Pradesh to drop food packets. और मैंने DC-3 भी फ्लू करे थे क्या करने के लिए? अरुणाचल प्रदेश में पैकेज ड्रॉप करने के लिए. I applied to the government for flying food and ammunition to soldiers during the Sino-Indian Indochina War. जब Sino-Indian Indochina War हुई थी, मैंने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर दिया था कि मैं फूड सप्लाई में काम करूंगी सोल्जर्स की तरह, सोल्जर्स के लिए. I remember the anguish of the soldiers who were starving. जो उनकी खुशी उनकी पता है, उनके चेहरे पता है उन सोल्जर्स की जो भूख से स्टार्व कर रहे थे. I did not even have on my uniform. I just wore a salwar kameez. मुझे अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं थी, मैंने सिर्फ सलवार कमीज पहनी थी. And when we landed for full in a small town, people were surprised to see me and they thought we might be spies. और जब मैंने लैंड करा था एक छोटे से टाउन में, पीपल सब शॉक हो गए थे मुझे देख के, जब उनको लग रहा था कि हम कोई स्पाई हैं. Another time I remember racing against the clock as we were flying with a marriage party on board. क्योंकि मेरे को फिर another time क्या था, मेरे को याद है जो हम रेस कर रहे थे काफी क्लॉक्स पे, जब हमें फ्लाई करना था मैरिज पार्टी के लिए जो हो रही थी, उसमें लैंडेड एट एन एयरफोर्स बेस. हम एयरफोर्स बेस पे लैंड करा था हमने. In the nick of the time before the auspicious hour of the wedding passed. थोड़ी सी टाइम में जब auspicious hour पास हुए थे वेडिंग के. इंटरव्यू, any disaster or scary moment? कोई डिजास्टर या फिर कोई स्केरी मोमेंट? दुर्बा, I remember landing without communication aids in the paddy fields in dense fog in Coach Bear. जब क्या हुआ था, तो मेरे को याद है जब मैंने लैंड करा था वहाँ पे कम्युनिकेशन एड, जब कोई से मेरी बातें नहीं हो पा रही थी, पैडी फील्ड में मैंने लैंड करा था, डेंस फॉग में, बहुत ज्यादा फॉग हो रखा था कोच बेयर में. The villagers thought we had landed from heaven. Villagers को लगा था हम heaven से आए हैं. One of my most terrifying memories was when I caught in a storm. और सबसे ज्यादा terrifying memory तो वो थी कि जब मेरे को तूफान में पकड़ी गई थी, तो तूफान आ गया था. We were flying over the Ganga and the weather was fierce. हम गंगा के ऊपर फ्लाई कर रहे थे, अब के वेदर बहुत ज्यादा खराब हो गया था, डरावना हो गया था. From 16,000 feet, the storm threw us down to 12,000 feet. And then to 4,000 feet. Storm से हम पहले कितने 16,000 feet पे थे, हमें storm कहाँ लिया था? 12,000 feet पे लिया था, फिर उससे 4,000 feet पे लिया था. I thought we would hit the ground. मुझे लग रहा था हम ground को hit ना कर दे. All the engines gauges had started freezing by then, and the engines were croaking as if they would fail. और engines ऐसे croak कर रहे थे, हमने freeze करना start कर दिया था, ऐसे croak कर रहे थे कि जैसे वो fail हो जाएंगे. Just kept on our courage and used all the strength
in us to climb up again, और हमने अपने करेज को बनाए रखा और यूज करी अपनी स्ट्रेंथ क्लाइम करने के लिए फिर से. God saved us, और God ने हमें बचा लिया. When we returned to Kolkata, the engineers told us that the wings on other sides had only one joint left after this drama. जब हम रिटर्न हो गए थे कोलकाता में तो इंजीनियर्स ने मुझे बताया था जो विंग्स थे खाली एक जॉइंट बच रहा था इस ड्रामा के बाद, एंड मे हैव फॉलन ऑफ एनी टाइम, और कभी भी गिर सकते थे. इंटरव्यूअर्स, एनी रिग्रेट्स, कोई तुम्हें रिग्रेट है? Durga, I never married as I thought my career would not allow me to devote sufficient time to family life. मैंने कभी शादी नहीं करी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरे करियर मुझे डिवोट नहीं करने देगा sufficient life, sufficient time, और मेरे को अपनी sufficient time सबसे ज्यादा काम देना पड़ेगा, अपनी फैमिली में देना पड़ेगा. I never took a day leave in my life. मैंने कभी भी एक दिन की लीव भी नहीं ली, छुट्टी भी नहीं ली. Even for sickness, जब मैं बीमार होती थी तब भी नहीं. But overall, it had been great. But एकदम अच्छा था जो भी था. Interviewer, what advice would you give aspiring women pilots? आप aspiring women pilots को क्या advice दोगे? Durga, many girls think that a pilot life is glamorous. बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि pilot life एकदम glamorous है. But they have to be willing to sacrifice a lot. But उन्हें बहुत सारी चीजें sacrifice करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी. It is a hard life with no fixed hours. Because the hard life है, इसकी कोई fixed hours नहीं है. You have to be ready to fly anytime, night or day. I would advise women to join the air traffic control on the meteorological department if they cannot become pilot straight away and not to give up hope. अगर मैं पहले एडवाइस करूंगी वुमेन्स को कि आप क्या बन जाओ एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में चले जाओ. अगर आप गिव अप नहीं करना चाहते पायलट बनने से पहले, अगर आपको अपनी होप गिव अप नहीं करनी, अगर आपको पायलट बनना है तो आपको डे नाइट वर्क करना पड़ेगा, किसी भी टाइम फ्लाई करना पड़ सकता है. सो इंटरव्यूअर, डू यू मिस फ्लाइंग नाउ? क्या आप फ्लाइंग को मिस करते हो अब? दुर्गा, आई स्टॉप फ्लाइंग इन 1989. मैंने फ्लाई करना कब स्टॉप करा था? 1989 में मैंने स्टॉप कर दिया था. And I retired from IAA. जब मैं रिटायर हो गई थी IAA से, by then I had launched 19,500 flight hours. और जब तक मैंने 19,500 hours लॉन्च कर दिए थे, जब तक मैं 19,500 hours तक फ्लाई कर चुकी थी. I had no means to fly privately after I retired. मैं कोई प्राइवेटली फ्लाई नहीं कर सकती थी जब मैं रिटायर हो गई. तो but I still fly as a passenger. मैं अभी एक पैसेंजर की तरह फ्लाई करती हूँ. I love traveling and I get 2-3 passes every year to travel anywhere in the world. और मुझे 2-3 passes मिलते हैं every year पर travel करने के पूरे world में. So this story was interviewed by Motosi Acharya. So that's all for this story. I hope you all like the explanation of this story. Thank you and have a great day.